you, Papa. So, just to lighten the mood and to move and tell you some stories from my childhood. Before my father became a professor or a teaching faculty at IIM, it was I and my brother in our childhood who were the lab rats, जिससे सारी testing हुई है. So he taught us his primary subjects that he taught us were maths and science, while my mother took care of the mother tongue languages like English, Hindi and others. So when I and my brother sometimes would drift or not pay attention or not probably go up to his level of excellence, his hand would go up like this. And the hand would not probably be up to make contact with our cheek or whatever. It was to remind us of 5 principles that he taught us growing up that we have incorporated in our lives. These 5 principles, first, I'm sure many of you would have heard from him during many interactions with him. The 5 principles, the first that he also just mentioned, honesty. Honesty in whatever you do. The second being time management. Time management is not, by the way, being 1 hour before for a train or whatever. Time management is knowing what thing will take how much time and when will the other one follow and how much time that task will take. That's time management. The third was dedication and hard work. Without that, you will not sustain. And the fourth, the main reason why this book is also here is knowledge. If you don't have the knowledge, you cannot succeed in life. And the final one, with the kind of man he is, it was team spirit. It is never a one person who delivers a job. It's always a team who delivers a job. So these were the 5 commandments, as I call them, which has stayed with me and my brother. My brother found the escape route, went to the US, and stay here. I hear these 5 points almost every day, so do my kids. So as I stand here, I feel that God, I stay here, I hear these 5 points almost every day, so do my kids. So as I stand here, I feel that God gave us 5 senses to function in life. But my father and my mother gave us these 5 commandments in life to be successful. My father took care of all our academics. My mother has been the pillar to take care of our health. So I jokingly sometimes tell, Papa ne 5 commandment diya, Mummy ne diya Allegra, Combiflam, Dolo, iron, multivitamins and iron. That's my parents for you, ladies and gentlemen. I cannot tell you how blessed I am to be their child and to have the upbringing that I have had. Thank you, Mummy and Papa. In interest of time, I now request Mr. S.K. Anand, retired whole-time director, head of IPCL, currently consultant of various growing business, also to each and every family called as the Bhishma Pitama, the father figure. Over to you, Mr. Anand. Thank you, Poonam. Pujay Guruji, Rotani family, all my colleagues. अभी स्पीच देना तो भूल गया, बहुत टाइम हो गया, रिटायर हुए almost 18 years. Lot of things have been said about Mr. Rotani, and he has been one of, if I have grown up in life, people like him were the pillars behind me. And the task which have been given, LP Patel told you, the 2 difficult sites for the IPCL were the Nagothane and afterward the Legate. And also to ensure the line which he is on the procurement side, store side, that the plant should not stop. And he has ensured that this has never happened in his life. So that is one boon which I got, and for this, a lot of people have helped me,
but he was the force behind this. मटीरियल मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ बोली जाती है ऑनेस्टी, उन्होंने ऑल्सो टॉट द फर्स्ट पिलर। ऑनेस्टी का कोई मतलब कोई भी मतलब इसकी ऑनेस्टी मैंने देखी है। I can vouch for it is very difficult to see in anybody. Few of the things probably you don't know, but I can tell you. When he was about to retire, the stress he faced, and no fault of his, and I won't take the name of a person who was very senior in the government of Gujarat. He was building a hospital at Gotri, now it is the first hospital or the government hospital. They asked me, hey, Mr. Anand, why don't you give us 40 lakhs? We want to have a hospital which will be helpful in the life of the Vadodara citizens. Knowing me, it was not possible. I said, I can give you 40 lakhs worth instrument. For 5 years, I will take the contract of the Monday. वो आदमी हमको आगे बोला, उसका रिप्रेजेंटेड केयर एंड टोल्ड मी, नहीं हमको तो पैसा चाहिए। तो बोला यार गवर्नमेंट की फैक्ट्री कंपनी में मैं कैसे आपको इतना पैसे दे सकता? नहीं आपके चेयरमैन तो IAS हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। I can't give you the instrument। उन्हें दिया हमने, उसका मना मैंने किया, उसका इनको हुआ। When he was retiring, the case was put against him, and a false case was put, and he has no way any fault connected with it. So, there are very few people like him you will have in your life. So, I can tell you the personal experience. And उस केस का इनको काफ़ी फैमिली को भी वो हुआ। I wanted to ask him to stay। अभी तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, why don't you stay? बट उन्होंने मेरे को दूसरा बहाना बनाया, क्योंकि मैं तो अभी गुरु जी की सेवा करता हूँ, स्कूल है उसको चलाना है। मैंने कहा उससे अच्छा नेक काम कहाँ से होगा, एक काम कहाँ से, उस काम को आप करिए, बीच में नहीं। फिर भी इन्होंने अपने प्रोफेशन के लिए, अपने प्रोफेशन की बेहतरमंद के लिए, और बच्चे जो इस प्रोफेशन में आते हैं उनके लिए जो किया है, it is no parallel example। How many people in Vadodara, so many industries, how many people have written books like, how many people have guided so many people who are working with anybody who has worked with him, anybody who has worked with him, he is connected। अब ये मेरा बहन का जो बोला है कि मेरा बहन चाय में दूंगी किताब लिखो, बट किताब के पीछे दो लोग हैं। Tell you probably one is APC, he was a good writer and he was a good speaker। उनको डेवलप करने में उनका बहुत, और सेकेंड आदमी जो इनको लिप बुक लिखने में सबसे ज़्यादा किया है वो अहमद पटेल। अहमद पटेल ने सबसे कहता मैं अगर बुक लिख सकता हूँ, he wrote a book in about almost a month। Sleep in 1 minute। शायद आपने पढ़ी हो, किसी लोगों के पास तो काफ़ी होगी। तो ये मतलब इनकी जो कंपनी थी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। डिसाइड द फैमिली, डिसाइड गुरु जी का बहुत था। गुरु जी ने मैं बोल सकता हूँ, जो गुरु जी ने इनको सिखाया है। तो गुरु जी एक चीज़ जो होती है, जब कुछ भी हो जाए, लीडर जाके वहाँ खड़ा हो जाए तो सबकी टेंशन नहीं। तो ये ऐसे आदमी हैं, अगर कुछ भी हो, अरे मैं हूँ ना, बड़ी होगा, ये फादरली फिगर फॉर द मेडिकल डिपार्टमेंट, that has been his quality।
And that quality has made so many people his friends. And so many people respect him. People respect him for the quality which he possesses, the human value which he has got. And very few people have that human value which he has got. गुरु जी इसमें आपका बहुत साथ होगा जो दिया है, क्योंकि आप लोगों को क्या सीखते हैं, एक ही चीज़ सीखते हैं कि वे किसी दुखी आदमी को या स्ट्रेस वाले आदमी को आप उसके फेस नहीं। तो ये मतलब मिस्टर मुल्तानी ऐसे पर्सनालिटी हैं, आप कोई भी मिले, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो उनको मिलते ही जैसे इनके मुंह में स्माइल आती है, इनको देख के ही सब में स्माइल आ जाती है। आप तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी है, भगवान आपको बहुत बहुत उम्र दे, और किताबें लिखो और फ्रेंड्स बनाओ, एंड पीपल विल रिमेंबर यू। थैंक यू अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है हर चीज में, ना सिर्फ पापा के लिए बट इवन हम सब के लिए। उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा बना रहे। गुरुजी, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज आए और 2 शब्द हैं। श्रीचंद्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुब्रह्मण्यं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकाय चित्ते शततं भजामि। नमो शारदा मात विद्यापर्देनी, करो मेद मेधा यथा कंत्रवेणी, करो नष्ट मोहात शांत आदिजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजिए। अनंत श्री भविष्यत पूज्य दरबार साहब भीलवाड़ा हरि सेवा धाम, सदगुरु बाबा शेवाराम साहब, सदगुरु बाबा हरिराम साहब, सदगुरु बाबा गंगाराम साहब, पूरे नौतानी परिवार और लक्ष्मण नौतानी के ऊपर दरबार साहब की अनंत कृपा है, और इस कृपा का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख रहे हैं आज, जो सदगुरु की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा जो इनके ऊपर है और सदा बनी रहे। इनके परिवार के ऊपर बीच में जो भी वक्ता थे बोल रहे थे, समझ रहा हूँ। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं आज धर्म मंच से हटके किसी ऐसे मंच पे आया हूँ जो इस बच्ची ने आज मेरे को इस माइक पे ऐसे बोला बहुत कम हूँ, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे इन बच्चों के साथ, ये बच्चियाँ छोटे छोटे थे, दिलीप, राकेश, तो मैं इनके साथ नोहा यार्ड में, और आज उन बच्चों को जब मैं देख रहा हूँ ना इस मंच पे बोलते हुए कि भले अपने पिता के लिए बोल रहे हैं, पर जो ऑडियंस सामने बैठे हैं वो किस पे है, वो कितने हैं। क्वांटिटी भले नहीं हो पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक ऑडियंस के पीछे हजारों जने हैं, उसके सामने ये परिवार के बच्चे बोल रहे हैं, तो उस परिवार के अधिदाता कैसे होंगे, ये सोच रहा हूँ बैठे बैठे। उस लक्ष्मण नौतानी के साथ मेरा भी बहुत समय निकला है। मैं लगभग ऐसा समझता हूँ, मैं 1968 से गुरुजी के पास आया हूँ, तो मुझे लगता है 68 और 70 से मेरा भी आना जाना बाबा जी के साथ आना हुआ। और अभी जैसे ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी है तो इनके साथ बैठता हूँ। इस अवस्था में जो भी आप लोगों की मटेरियल मैनेजमेंट हो आई होगी, आप लोगों के पास भी बहुतों के पास आएगी, पर इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है?
मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ लक्ष्मी का इतना आवागमन नहीं हो और इतनी सरस्वती की कृपा हो, और लक्ष्मी तो खैर एक छाया की तरह है, सरस्वती है तो कहीं पे भी आप लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये ऊर्जा कहाँ से है इनके पास? इस चीज के लिए इनका जीवन बहुत सरल, न किसी क्लब में जाना, न किसी ऐसे सोशल लाइफ देखी होगी आपने इनकी, सामाजिक सेवा, धर्म के प्रति सच के साथ निष्ठा से काम करना। जब काम करते हैं, मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बता सकता हूं। जब मैं नवायार्ड में था, डॉक्टर मीरा नवायार्ड में डॉक्टर थे, हम लोग खेलते थे वहां के, हम लोग गुरु जी के साथ आके। जब एक बार मैं अकेले आया तो मैंने, उस टाइम ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, रेलवे का फोन था और इनके ऑफिस का भी फोन था, शायद इनको याद हो या नहीं हो। मुझे अपने आश्रम भीलवाड़ा में काम था, मैंने नंबर डायल करके बात कर ली। मेरे को पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, शायद जैसे मैं समझता था जिस घर में जाते थे महाराज थे तो चलो जो है कर लो, और मैं इनकी तरफ से कोई मनाही होती थी, हकीकत बात बता रहा हूं। पर जब कुछ समय बाद वो बिल आया, मैं भी वापस उस टाइम था और बिल पे हो रहा था, तो उस बिल के अंडरलाइन कर दी गई लच्छू नौतानी की तरफ से कि ये बिल मेरा पर्सनल है, ये बिल कंपनी से पे नहीं होगा। क्या कंपनी को पूछने वाली थी 10-15 रुपए की? मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है, इतनी बड़ी, जिस कर्म भूमि में काम कर रहे थे वो 10-15 रुपए के लिए तो नहीं पूछते, यहाँ उस समय का जो भी बिल होगा थोड़ा सा। पर जिन्होंने ये चीज काम करके की तो उन पे सरस्वती अति प्रसन्न है, और उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। शायद मैंने इनके साथ बहुत जीवन बिताया है और बहुत अच्छा आता रहता हूँ उनका, लगभग हफ्ते में 1-2 बार तो बात कर ही लेते हैं और समाचार होते ही हैं। इनके पास इनकी ऊर्जा जो है ना, इनके परिवार से है। ये परिवार से बढ़ सके किसी को नहीं मानते हैं लक्ष्मी। चाहे परिवार में कुटुंब और परिवार बहुत फर्क है। कुटुंब पूरा रिश्तेदारी नौतानी, परिवार यानी किसका? लच्छू, मीरा, राकेश, ये मेरे को तो नाम ही नहीं, मैं पूनम, तेरी बोलता हूँ मैं इसको बचपन से। इनके प्रति इन्होंने जो दिया बच्चों पे ध्यान, उसको ध्यान देने के बाद जब ये भी रिटायरमेंट हो गए, जब छोटे बच्चे आ गए, ग्रैंड चिल्ड्रन आ गए, धोतियां आ गई, तो जो भले कितना भी काम कर ले, जो इनकी उन परिवार के प्रति स्नेह और प्रेम है, शायद उन बच्चों की जो साथ ही रहते हैं ना, इतनी ऊर्जा। और बच्चों के पास जो ऊर्जा होती है ना, आपके पास भी नहीं है। आपके पास फिर भी अपना स्वार्थ आ जाएगा उसके लिए, पर बच्चों के पास बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता है, वो प्रेम से करते हैं और प्रेम से ही रहते हैं। तो उन बच्चों के साथ इतना प्रेम है उनका, उन बच्चों की ऊर्जा आज इनको इतना ये देती है। ये बुक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये पुस्तक नहीं है। बुक, पुस्तक, किताब कार्य खत्म होने के बाद कहाँ जाएगी? रद्दी में चली जाएगी। और ये मैं ये कहूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का सागर है। जब तक वो पढ़ेंगे तब तक इसमें शायद एल.एल. नौतानी जी को याद करेंगे कि कौन होगा। जरूर कोई ना कोई ऐसा पढ़ने वाला भी आएगा जो पढ़ेगा, तो जरूर न कभी वो भी सर्च करेगा कि ऐसे भी कोई हुए दानवीर। अरे धन का दान दे दिया, अन्न का दान दे दिया, विद्या का दान ऐसा दिया, विद्या दान एक बार फ्री में आप कोचिंग करवा सकते हो। ऐसा बुक दे दिया जो आने वाले कई परिवार इससे पलेंगे, आने वाली कई पीढ़ियां इससे तरेगी, आने वाले कई जने इस पुस्तक को देखे और इसको संजो के रखेंगे कि आगे किसी को फिर ये काम आएगी, आगे ये फिर किसी को काम आएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे आज के तारीख इस कलिकाल के अंदर। मैं तो ये कहूँ, इन पे सदगुरु बाबा शिवानंद साहब की अनंत कृपा है, दरबार साहब की समाधि वाले सदगुरुओं की खूब कृपा है, और आगे भी ये परिवार
जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, इनमें एक बात और भी है, लिटिगेशन से बहुत घबराते हैं। लिटिगेशन का नाम आया नहीं ना, किसी भी तरह से सॉल्यूशन करो, कुछ भी उसके लिए कुर्बानी करो। लिटिगेशन में टेंशन होता है और टेंशन में कोई काम नहीं होता है। ये चीज बहुत अच्छी है। कई चीज विषय पे मेरे साथ होती रहती है, कभी भी जाना हो ना कोर्ट कचहरी थाने में, सवाल ही नहीं, जल्दी उसको प्रॉब्लम को सोल्व करो। और होना भी चाहिए, दुख जितना जल्दी निकले और प्रॉब्लम जितना जल्दी खत्म हो ना, तो आदमी को उतनी अच्छी ऊर्जा जल्दी मिलती है। तो कुछ तो बातें इनमें बहुत अच्छी है, तभी ये सब इस मंजिल पे आए हैं। तो परमात्मा करे सतगुरु बाबा शिवाराम साहब की खूब कृपा है इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर, आगे भी इनके परिवार से और इनसे खूब है कि समाज के लिए और हमारे इस राष्ट्र के लिए, ये खाली एक परिवार के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र में भी काम आएगी। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण करेगी। ये राष्ट्र के लिए भी ये चीज कैसे व्यवस्था हो, आज की जो व्यवस्था देख रहे हैं कितनी दुर्मिल हो गई है, उसमें भी उस विषय पे भी बात होती है ना, तो उनको भी ये बता देते हैं। तो ये बहुत, ये हमारे राष्ट्र के लिए भी काम आएगी, समाज के लिए भी काम आएगी। समाज में ये जरूरी नहीं है कि जिस भाषा से हो, समाज हमारा ये वसुधैव कुटुंबकम है, ये सबके लिए काम आएगी और ये सबके लिए हैं और ये सबको साथ दे रहे हैं। परमात्मा इनको खूब दीर्घायु दे, स्वस्थ काया दे और खूब आनंद करे इस परिवार में हो। थैंक यू गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। With this we conclude the evening. On behalf of Notani family, I thank all of you for your presence. With your support, love, blessings, and my mother's chai, I am sure I am going to see you all again next year. Just once, please. Sorry, I missed a small thing. I invite the IIM team on stage. They would like to felicitate my father. I hope you have enjoyed this evening. Dinner is now served. I request you to please remember to collect the copy of the book before you leave. Thank you, everyone. I thank my press guys. They have come because this book is as a part of complimentary copy. If this book would have been on a commercial basis, they would have not come. I thank them that they have come here, and it is one type of support, inspiration to the people like us. Thank you. लॉन्चिंग हुआ है, क्या कहना चाहिए? मटेरियल मैनेजमेंट का ये जो बुक लॉन्च हुआ है, मिस्टर नोतानी ने लिखा है, ये सबसे बड़ी बात तो एक निःशुल्क है और विद्या जो निःशुल्क दी जा रही है, ये आगे उनके लिए कितने ही परिवार को काम आएगी जो इस विषय में या इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, कि उनके परिवार को जब विद्या मिलती है, विद्यादान उत्तम दान है सबसे, कि कोई भी चीज़ हम दान कर रहे हैं, अन्नदान कर रहे हैं तो एक बार पेट भरेगा, पर विद्यादान दे रहे हैं उनका और उनके परिवार और राष्ट्र में कई जनों को काम आएगी, इससे राष्ट्र का भी निर्माण होगा। ऐसे निस्वार्थ भाव से एल नोतानी जी ने ये पुस्तक जो लिखा है, ये उन सभी विद्यार्थियों को जो इस विषय पे अध्ययन कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को, और ये हमारे राष्ट्र और हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही सोच के जो इस तरह जो हमारे आचार्य जिस तरह विद्यादान करते थे पहले, इस तरह जो देंगे, आज के युग में बहुत व्यक्ति आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा और लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर इस तरह विद्या को दान देना चाहिए।
नूतानी जी परिवार को क्या आशीर्वाद देना चाहिए? ऐसा है नौतानी परिवार को दरबार साहब परिवार के आशीर्वाद है। मैं फिर भी और ये कहूँगा सदगुरु के चरणों में कि खूब इनको सेवा और सिमरन की आशीर्वाद दें। ये परिवार हमें सेवा और सिमरन से जुड़ा रहे और इस राष्ट्र की सेवा में हमें तत्पर कितना उपयोगी है और खास इसमें क्या है? हमारे इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल इनपुट कॉस्ट कोई भी इंडस्ट्री में मिनिमम 50% से ज़्यादा होता है। ये कहा जाता है हमारी मैनेजमेंट थियरी में कि मटेरियल्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रॉफिट ओरिएंटेड फंक्शन। जितना आप उसमें सेविंग करोगे वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में जाएगा। सो मटेरियल्स परचेज, मटेरियल्स स्टोरेज, मटेरियल्स कंट्रोल, ये सब जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने 40 साल काम किया है। 40 साल में मैंने देखा है क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ में मिनिमम इन्वेंट्री रहे, जो जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बेस्ड स्टैंडर्ड जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होगी तो इन्वेस्टमेंट विल बी मिनिमम। सो मेरा एफर्ट यही है जो मैंने इसमें मुझे कमर्शियल नहीं है, ये बुक इज़ नॉट फॉर सेल, ये बुक इज़ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी। जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है उस सबको मैं पहुंचाऊंगा कि भाई ये बुक पढ़ो और इससे आप मटेरियल्स मैनेजमेंट को ऐसे स्टाइल से, ऐसे वे फॉरवर्ड से आगे चलो कि इन्वेंट्री कमती रहे, मिनिमम प्राइस से हम मटेरियल लाएँ एंड 100% सर्विस। तो ये बुक सबको एक अच्छा सा गाइड होगा और हमारी यंग जनरेशन सर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको कितना बेनिफिट होगा? सबको मटेरियल्स जो है हर इंडस्ट्री को चाहिए, स्मॉल स्केल हो या मीडियम हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो। मटेरियल्स इज मेन रिक्वायर्ड एंड 50% इज़ द इनपुट कॉस्ट। एंड ये कहा जाता है कि जितना आप उसमें सेविंग करोगे इट डायरेक्टली गोज इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। आने वाली पीढ़ी को कितना उपयोगी रहेगा बिल्कुल मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल, ये जो है ये एफर्ट उसके लिए ही है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है ये बुक पढ़ेंगे, उन लोगों को ख्याल आएगा कि कैसे हम मटेरियल्स मैनेजमेंट को हैंडल करें। और इसी बुक को देख के जब मैं सॉफ्ट कॉपी डिफरेंट कंपनीज को भेजा CEO को, तो एक कंपनी ने मुझे बोला है कि आप 50 कॉपी हमको भेजें। हम हर जो हमारे कंपनी में जो काम करता है मटेरियल्स डिपार्टमेंट में उसको हम ये कॉपी देंगे, समझेंगे। और मैंने इसमें लिखा है कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं उसके लिए कोई भी कॉस्ट लेने वाला नहीं। तो मैं उन लोग सब लोगों को और सब मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे नेशन की इन्वेंट्री मिनिमम हो और हमारे इंडस्ट्रीज़ का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ऑटोमेटिकली नेशन का ग्रोथ अच्छा होगा। सर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके लिए सहयोग किसका मिला? प्रेरणा मिली, हमें अच्छा सा ज्ञान मिला गुरुजी से, हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे जिन लोगों ने मैंने जिस कंपनी में जिसमें काम किया, जो हमारे सीनियर्स थे, सब लोगों ने हमें राइट सजेशन दी, राइट हमें गाइडेंस दिया। और जो मैंने आपको बताया कि विल पावर चाहिए कि जो मैंने सीखा है वही मैं उसके स्टाइल से मैं काम करूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सीखा एक और करूँ अलग। तो जो कुछ मैंने सीखा है मैंने अपनी लाइफ में करके दिखाया है, वही मैंने ये बुक में लिखा है कि मैंने किया है, अभी आप भी करके दिखाओ। थैंक यू सो मच। वर्षों से मेहनत से ये मटेरियल मैनेजमेंट का बुक बनाया है और ये बुक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेकारी है। और ये मिस्टर लोकाई ने ये बुक अपने फायदे के लिए नहीं बनाई है और ये बुक फ्री ऑफ चार्ज में किसी को भी मदद आवे इस हिसाब से बनाई है
और कोई चार्ज नहीं लिए इसकी। और आने वाली पीढ़ी के लिए जो मैनेजमेंट की जो बुक बनाई है वो बहुत काम की है, और ये आगे चल के आगे वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत काम की है बुक। सन्मुख धाम से।